हुंडई मोटर इंडिया में आपकी फेवरेट कार कौन सी है? स्टॉक मार्केट में आईपीओ तो लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन इस बार इंडियन स्टॉक मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च होने वाला है। Hyundai इज प्लानिंग टू लिस्ट इट्स इंडियन ऑटो बिजनेस और Hyundai मोटर इंडिया आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं। तरुण गर्ग जो सीईओ है कंपनी के, वो हमारे साथ हैं, एंड मिस्टर बांगड़ोहर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं कंपनी के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। कोटेक चैटर में आपका स्वागत है। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ आप इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए लेकर आ रहे हैं। कुड यू प्लीज शेयर डिटेल्स अबाउट द आईपीओ एंड Hyundai मोटर इंडिया के ऑपरेशंस के बारे में भी हमें बताइए। हम लोग HMC का पार्ट हैं, जो Hyundai मोटर ग्रुप है, जो कि थर्ड बिगेस्ट OEM है ग्लोबली, और इंडिया में हमें बहुत सक्सेस मिली है। लगभग 8.5 मिलियन कस्टमर्स हमारी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि जो हमें ये सक्सेस मिली है, अब हम वो समय आ गया है कि वी टेक द सेकेंड बिग स्टेप in terms of further Indianizing our operations in our pursuance to become the most trusted brand in India। और इसीलिए हम ये जो है IPO लेके आ रहे हैं। इस IPO के द्वारा बेसिकली all our local investors as well as global investors will get an opportunity to become a part of our growth story. I think this is very important. Also, we can now pursue some global standards of operations, excellence, as well as governance. So I think this is another very big objective of this IPO. As far as the details are concerned, HMC is diluting 17.5% stake through OFS, offer for sale, and the issue will open on the 15th of October and it will close on the 17th of October. And the price band is rupees 1865 to rupees 1960, and there is an employee discount of rupees 186. सर, अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आईपीओ के लिए वैल्यूएशन सेट किया है? If you see our financial parameters, even in financial year 24, on a revenue of close to 70,000 crores, we had a EBITDA margin of 13%. You can very clearly see that we have pursued a strategy of quality of growth, and we have industry-leading margins, both in terms of the local markets as well as the global peers as well. Sir, we would like to understand post-listing what will be your strategy for the domestic car market और किस तरह से आप इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स पर फोकस करने वाले हैं? Currently the penetration of EVs is about between 2 to 2.5%, and we believe that backed by very strong government incentives in the EV space, whether it is by way of tax structure or the state government incentives, or even with the recently announced scheme on charging infrastructure, the EV market is poised to grow and the penetration will keep on going up. As far as Hyundai is concerned, you would have seen in our RHP, we have announced a very aggressive plan for EVs. 4 EVs we are going to introduce, starting with Creta EV in the Q4 of financial 25. Our parent HMC, in fact, today has all kinds of technologies. You mentioned about hybrids. Yes, plug-in hybrids, strong hybrids, battery electric vehicles, petrol, diesel, CNG, turbo. We have everything, even hydrogen. So I think HMI is very uniquely positioned to leverage those capabilities and introduce technologies in India based on customer demand, as we have done for all these 26 years of our history in India. तो आपकी डिफरेंट सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन सा कार मॉडल या फिर सेगमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? 2015 में we had launched the Creta. That time SUV contribution in the industry was only 13%. But Creta became a big game changer, and today industry SUV contribution is at about 50-52%. जहाँ तक Hyundai की बात है, हमारा contribution इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा है। हमारे पोर्टफोलियो का contribution SUVs का इस समय 67-68% के आसपास है, और Creta ऑफ कोर्स एक सेगमेंट लीडर है, बहुत ही अच्छा कर रही है। ऑलमोस्ट हमने Creta का फेसलिफ्ट लॉन्च किया था जनवरी में, जिसका हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमारी डबल डिजिट ग्रोथ Creta के वॉल्यूम्स में हो रही है। इनफैक्ट कंसिस्टेंटली Creta एक ऐसा मॉडल है जो हर साल डबल डिजिट ग्रोथ करता रहा है। सो ये एक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसके अलावा वेन्यू बहुत अच्छा कर रही है। पिछले महीने हमने अल्काजार का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जिसी तरह से हमने एक्स्ट्रा लॉन्च किया था लास्ट ईयर, जो कि एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में, उसका भी हमें बहुत सक्सेस मिली है। और हमने अभी 2 महीना पहले एक्स्टर में डुअल सिलेंडर CNG लॉन्च किया है,
जो कि हमें उसका भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर आप देखते हैं, हम एसयूवी सेगमेंट में बहुत ही स्ट्रांग हैं। सेडान सेगमेंट की बात करें, वर्ना का फुल मॉडल चेंज हमने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर, और उसमें भी हमारा बहुत हाई मार्केट शेयर है। औरा में बहुत अच्छे नंबर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। सर, एक ट्रेंड जो हमने ऑब्जर्व किया है कि रूरल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली अगर हम मॉडल्स जैसे एसयूवी की बात करें। तो आपके क्या थॉट्स इन पे, किस तरह से ट्रेंड सेट हो रहा है और आने वाले समय में क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, और देखिए मेरे को भी इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स हो गए हैं, और जब मैं भी देखता हूँ कि आज रूरल का एसयूवी कंट्रीब्यूशन वो भी अर्बन के बराबर पहुंच चुका है। इनफैक्ट अगर हम अपने जनवरी से सितंबर के नंबर्स देखते हैं, तो रूरल और अर्बन दोनों ही 67-68% पे एसयूवी कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अचंभे की बात है कि अब क्योंकि एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हो गया है, एक एस्पिरेशन जो रूरल कस्टमर्स की है, अब वो भी बिल्कुल अर्बन के बराबर है। उनकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत अच्छी चल रही है। तो इन सब वजहों की वजह से वो भी कस्टमर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। उन्हें भी डिजाइन चाहिए, उन्हें भी फीचर्स चाहिए, उन्हें भी सेफ्टी चाहिए, और बिकॉज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, तो अब वो गाड़ी लेने में, एसयूवी लेने में हिचकते भी नहीं है। सो वेरी क्लियरली द रूरल preferences are now very, very similar to urban preferences. Also, the rural penetration is increasing in our portfolio. In fact, now the rural penetration is more than 20%, and it used to be only about 16.5% 4-5 years back. So very clearly, every year we are seeing a good growth in the rural penetration. Also, it is backed by our very strong network. 40% of our network is in the rural areas. तो कंपनी ने रिसेंटली तालेगांव प्लांट को स्टैब्लिश किया है। आने वाले समय में कैपेसिटी में किस तरह का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है? आज हमारी कैपेसिटी 824,000 की है, 8,24,000 की कैपेसिटी है जो हमारी तमिलनाडु में है। और हमने अभी, जैसे आपने बताया कि हमने तालेगांव प्लांट एक्वायर किया है, उसकी कैपेसिटी 2 फेज में आएगी। 1,70,000 कैपेसिटी जो है वो H2 ऑफ कैलेंडर 25 में आएगी, जो कि हमें 9,94,000 की कैपेसिटी पे पहुंचा देगा। उसके बाद 2028 में 80,000 और ऐड होगी, तो हम लगभग ऑलमोस्ट क्लोज टू 11 लाख कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे 2028 तक, जो कि लगभग 30% कैपेसिटी एडिशन है अगले 3-4 साल में। तो आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे असर्टिव स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं, और इस कैपेसिटी से हम ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा पाएंगे। Going forward, Mr. Wongru, what are the royalty terms with your parent company, and what is the capital expenditure outlook for the next 2 to 3 years? Our royalty agreement with our HMC, the 3.5% of our passenger vehicle sales revenue. Through like this royalty, we can get the benefit from our parent company, future technology, cutting edge technology, EV, everything, and Hyundai brand also. Going forward, our royalty is 3.5% to maintain for long period, unless there is a significant change of OECD guideline or global transfer pricing issue. Okay, our CapEx plan, we actually mentioned that our DRHP, 320 billion rupees we will invest up to 2032. It's including MOU with the Maharashtra government and the Tamil Nadu government. It's including our EV infrastructure also. Mr. Garg, Hyundai Motor India में आपकी फेवरेट कार कौन सी है? On my favorite model, it continues to be Ioniq 5, because I believe this is really the future, as far as India is concerned. Very, very strong. And I think Ioniq 5 is a true reflection of Hyundai's R&D capability and our commitment that we are going to bring those world-class technologies to India. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए, कोटक चैट रूम में, और ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.